ଆଜିର ଆମର ଟପିକ ହେଉଛି ଦ ଫିୟର ଦ୍ୟାଟ୍ ରିଚ୍ଡ ଲଣ୍ଡନ। ଏବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି ଫିୟର ମାନେ କାହାର ଫିୟର କାହାକୁ ହେଲା ଫିୟର, ଡର କାହାକୁ ହେଲା। ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆନ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଆମର ସିରିଜଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଫିୟର ଏ ଜାଗାରେ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ନା ସିପୋଇ ମ୍ୟୁଟିନିକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସିପାହୀ ମ୍ୟୁଟିନି, ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଯୋଉଟା 1857 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଦେଖିଥିଲେ, ସେଇଟା ମାନେ ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦବେଇ ତ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଧୂଆଁ ଉଠିଥିଲା, ଯୋଉ ଡରର ଧୂଆଁ ଉଠିଥିଲା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ମନରେ, ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଶଙ୍କା ଆସିଲା ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନେ ଏକାଠି ହେଇକିରି ଆମକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନେ କେବେ ମାନେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ 1857 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଂରେଜ ମାନେ ପୁରା ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟରେ ଥିଲେ, ପୁରା ଆଟାକ କରିବା ଉପରେ ଥିଲେ, ସବୁକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ଉପରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 1857 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ରିଆଟାକ କରିପାରିବେ, ଆମ ବିରୋଧରେ ସଂଗଠିତ ହେଇପାରିବେ। ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଫିୟରଟା ଥିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଡରଟା ଥିଲା, ସେ 1857 ମସିହାରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଫାଇନାଲି ଏ ଡର କେବଳ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହିଲାନି, ଏଇଟା ଲଣ୍ଡନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଆମର ଶାସନ କରୁଥିଲା ନା, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 1599 ମସିହାରେ ଆମର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ତିଆରି ହବା ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ସେଇ କମ୍ପାନୀ ହିଁ ଶାସନ କରିକି ଆସୁଥିଲା, ଆଉ ସେ କମ୍ପାନୀ ହିଁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରୁଥିଲା। କେବଳ ବ୍ରିଟିଶ କ୍ରାଉନ ବା ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସିଆଲ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମେନଲି କମ୍ପାନୀ ହିଁ ଶାସନ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 1857 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଭାବିବାକୁ ପଡିଲା ଯେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ସିଧା ଲଣ୍ଡନରୁ କରାଗଲା, ମାନେ ପୁରା ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରାଗଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମର ଟପିକ ଦ ଫିୟର ଦ୍ୟାଟ୍ ରିଚ୍ଡ ଲଣ୍ଡନ फ्रॉम कंपनी टू क्राउन द रिवार्थ ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। केमिति आमे धीरे धीरे पूरा शिफ्टिंग करी गले, माने कंपनी संपूर्ण रूपे हटी गला एवं ता बदल रे क्राउन आसी गला। माने हमर जो मेन शासक थिले कंपनी पर्यंत, ता बदल रे ब्रिटिशर्स माने एबे हमको डायरेक्ट शासन करिवे। ब्रिटिश रा जो रानी थिले से ही हमर हेड हेबे, मुख्य हेबे। तो कंपनी टू क्राउन एथि पे यार नाम रखा जायछि। या द्वारा गोटे हमर ब्रिटिश इंडिया रा आरंभ होइथिला। तो चलंतु आज टॉपिक स्टार्ट करिवा। आपण ओवरऑल बुझी सारिबानी जे आज हमें कोन डिस्कस करिवार अछि। टिके माने आज शॉर्ट टॉपिक रहिबो, बेसी लेंथी होबार चांस नहीं। ताले पुणी थरे कहूछि जदि आपण ए जो पूरा पीडीएफ को नबा पे चाहउछंती बा कोनसे अपडेट दबा चाहउछंती, ताले आपण टेलीग्राम लिंक को जॉइन करंतु। डिस्क्रिप्शन किंबा कमेंट रे को जगह रे भी आपन को टेलीग्राम रो लिंक मिलि जिवो। ଏହା ଛଡା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସିଧାସଳଖ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ଯାହା ଅଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଜୁକେସନ, ସେଇଟାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ମଧ୍ୟ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆଜିର ମେନ୍ ଟପିକ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଦ ଫିୟର ଦ୍ୟାଟ୍ ରିଚ୍ ଲଣ୍ଡନ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ 1857 ମସିହାରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହଟା ସରୁ ସରୁ ତ 1858 ହେଇଗଲା, ଆଉ ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଯେ 1859 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରହିଲା। ଆଉ 1858-59 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଯେତେକ ମେନ୍ ଲିଡର ସବୁ ଥିଲେ, ସେମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏତ କ୍ୟାପଚର କରିଦିଆଗଲା, କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ମାନେ ବଳପୂର୍ବକ କ୍ୟାପଚର କରାଗଲା, ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଯେପରି ଆମର ମୁଗଲ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ମୁଗଲ ଏମ୍ପିରିୟର ଥିଲେ ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫରଙ୍କୁ ରଙ୍ଗୁନକୁ ପଠେଇ ଦିଆଗଲା, ତାଙ୍କୁ ପୁରା ମାନେ ହାଉସ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ରଖାଗଲା। ତାପରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଲୋକ ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ କି ସରେଣ୍ଡର କଲେନି, ସେମାନେ ଯେମିତି କି ନାନା ସାହେବ ଥିଲେ, ନାନା ସାହେବଙ୍କ ପରେ ତଣ୍ଟିଆ ଟୋପି ଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କ କଥା ସବୁ ଦେଖିଲେ। ଏମାନେ ବିନା ସରେଣ୍ଡର କରିକିରି କିଏ ନେପାଳକୁ ଯାଇ ପଳେଇଥିଲେ, କିଏ ମାନେ ଗରିଲା ୱାରଫେୟାର ରେ ଲାଗି ରହିଥିଲେ। ମାନେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢିତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କଥା ଏଇଟା ଯେ ସମସ୍ତେ ଲଢି ନଥିଲେ। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛେ ଯେ এই যুদ্ধরে বা এই সিপাহী বিদ্রোহরে বড় বড় মর্চান্টস মানে সপোর্ট করনতিলে, প্রিন্সলি স্টেট মানে সপোর্ট করনতিলে, এবং বহুত গুড়ে মানে বহুত কম লোক হি এতে পার্টিসিপেট করতিলে। মানে আমাকে লাগুচি স্টার্টিং রে এতে বড় ফোর্স থিলা, কিন্তু আমার ইন্ডিয়ার সাইজ যেতে সেই অনুসারে সমস্তে একত্রিত হেই নতিলে 1858 মସିହାର এই 1857 মସିହାର এই যুদ্ধরে। তথাপি এতে কম ইফেক্টরে মধ্য, এতে কম যোগদান পরে মধ্য সিপাহী বিদ্রোহ গোটে মানে ভয়র বাতাবরণ যে সৃষ্টি করতিলা ব্রিটিশর্স মানক ମଧ୍ୟରେ। ତ ସେଇ ଯୋଗୁ ଲଣ୍ଡନରେ କଣ କରାଗଲା ନା ପାୱାର ସିଫ୍ଟିଂ କରାଗଲା 1858 ମସିହାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫିସିଆଲ ସିଫ୍ଟିଂ ହେଇଗଲା, କ୍ରାଉନ ଆମର ହେଡ ହେବେ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆପଣ ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମନେ ରଖିବେ। 1599 ରୁ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ତିଆରି ହବା ଠାରୁ 1858 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ରାଜତ୍ୱ ରହିଥିଲା, ପୁରା ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଆମକୁ ଶାସନ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ এই 1858 ମସିହା ପରେ ଆମର ଏବେ କ୍ରାଉନ ରୁଲ ଆସିଯିବେ, ମାନେ କ୍ରାଉନ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ହେଡ ହେଇକିରି ରହିବେ। ତାହେଲେ 1858 ମସିହାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ କଣ ଥିଲା 1858 ମସିହାର ପୂର୍ବରୁ କଣ ଥିଲା, ମାନେ ଯଦି କହିବା 1784 ରେ ଗୋଟେ ପିଟ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ ଆସିଥିଲା। ଏଟା ତ ପଲିଟିକ୍ସ ର ଟିକେ ମାନେ ପଲିଟିର ଟପିକ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସର୍ଟ ଦେଖିବା ଯେ 1784 ରୁ 1858 ମସିହା এই পর্যন্ত যেতবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কোম্পানি রুল থিলা, সে পর্যন্ত কোন সিস্টেম থিলা, সেতবে গোটে ডুয়াল গভর্নমেন্ট থিলা। ডুয়াল গভর্নমেন্ট মানে কোন, দুইটা গভর্নমেন্ট কোন না, গোটে হউচନ୍ତି রহিবে কোর্ট অফ ডাইরেক্টর্স, আউ গোটে হউচନ୍ତି बोर्ड অফ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जने रहिबे, ये होचंती हमर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, आउ जने होचंती बोर्ड ऑफ कंट्रोल।
तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को माने रहिबे ना शेयर होल्डर्स माने कंपनी रो शेयर होल्डर्स कमर्शियल इंटरेस्ट जो मानकर थियो ईस्ट इंडिया कंपनी सहित माने आपण गोटे एग्जांपल नियंतु गोटे कंपनी रहिति हमर सपोज जियो रहिछि जियो गोटे हमर कंपनी ताले जियो जदी हमर गोटे ईस्ट इंडिया वाला गोटे कंपनी हला सी जाईकरी गोटे को जगह रे शासन कला एग्जांपल हमर श्रीलंका नै जिवा श्रीलंका रे जियो जाईकरी निजर पूरा शासन भार संभाळिला माने पूरा ताको धीरे धीरे कैप्चर करी आरंभ कला किंतु किछि वर्ष परे श्रीलंका लोक अपोज कले विक्षोभ कले तो से समय कोन करा गला ना इंडिया कोन गयला इंडियन गवर्नमेंट कोन गयला जियो को हटै दियाला जियो को हटै की ता जगह रे एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया रे ही चलै देला श्रीलंका रे ठीक ए काम हेतिला माने जियो जगह रे आपण ईस्ट इंडिया कंपनी को रखि परिबे कंपनी रो जो प्राइवेट जिंसडा थिला वर्तमान टिके गवर्नमेंट जिंस आसी गला त जते बेले जियो माने जदि मैं तार इक्विवेलेंट हमें कहबा जते बेले हमर ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थिला से समय जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थिले से समय रे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से कोमन रहउतिले शेयर होल्डर जेम गोटे प्राइवेट कंपनी अछि तार शेयर होल्डर्स सब रहितिबे तार माने एमिति लोक थिबे जो मानकर कमर्शियल इंटरेस्ट थिबो माने कंपनी रो प्रॉफिट ही तांकर प्रॉफिट हेबो सेही प्रकार सब जो लोक माने थिले से माने हमर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थिले केबे कथा कहूची 1858 मसिया पूर्व कथा हमको 1858 मसिया रे कोन चेंजेस हैला सेटा बुझियो कहले एटा जानिया पड़िबो जे ता पूर्व थिला कोन तो 1858 मसिया पूर्व कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थिले एवं ता छडा आउ गोटे थिला हमर बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स छडा द्वितीयटा होची हमर बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोन रिप्रेजेंटेड द ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट करूतिला संपूर्ण ब्रिटिश क्राउन नथिला ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट करतिला एंड पॉलिटिकल एंड सुप्रीम कंट्रोल ओवर इंडिया ऊपर गोटे पॉलिटिकली गोटे सुप्रीम कंट्रोल रखुतिला किंतु कथा सब ईस्ट इंडिया कंपनी माने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का मुख्य वैल्यू रहितिला मुख्य भूमिका रहितिला तो दीटा मन रखिबे गोटे होची कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आउट होची बोर्ड ऑफ कंट्रोल जोटा कि 1784 मसिया गोटे पीट्स इंडिया एक्ट थिला ता परटू 1858 मसिया पर्यंत ए कथाडा संपूर्ण रूपे चलतिला तो याकू ही कहै जायते डुअल गवर्नमेंट सिस्टम ताले एटा आपण आउ गोटे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर हे परिबो जे डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को अबोलिश करा गला माने 1858 मसिया रे नुवा सिस्टम अना गला या द्वारा डुअल गवर्नमेंट को संपूर्ण अबोलिश करा गला ना बोर्ड ऑफ कंट्रोल रहिबो ना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रहिबो एथरक संपूर्ण रूपे क्राउन निज अंचल शासन करिवो केमदि करिवो 1858 मसिया परे कोन हला ना गोटे नुवा पोस्ट तयारी करा गला और से पोस्ट हेउची सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माने कोन ना ब्रिटिश रो देखो ब्रिटिश रो होची हमर क्राउन ब्रिटिश रे होची हमर क्राउन माने रानी तांकर जे थिले हमर विक्टोरिया तो तांको अंडर रे तांकर गोटे काम करिया पे तांकर थिले पार्लियामेंट ये होचंती माने हेड नाम को हेड किंतु माने कार्यरत करिया पे गोटे पार्लियामेंट थिबो से पार्लियामेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट कथा कहछु ए ब्रिटिश पार्लियामेंट रे गोटे कैबिनेट पोस्ट माने ब्रिटिश हमर जेमति कैबिनेट मंत्री सब अछंती से भलिया ब्रिटिश पार्लियामेंट रे गोटे कैबिनेट पोस्ट तयारी करा गला तांको ना होची सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माने से पोजीशन ना होची सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जोटा कि संपूर्ण रूप रे इंडिया रो कथा ही बुझिबो आ से आंसरेबल हबो ब्रिटिश पार्लियामेंट को माने पूरा एपर्यंत जो केवल गोटे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल आ डायरेक्टर्स मानू नहीं जो काम चलीथिला सेटा को उठै दिया जायकरी एबे गोटे पूरा क्राउन निजर पार्लियामेंट रे गोटे मंत्री लेवल रो गोटे लोक रखिला जार ना रखा गला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जे कि संपूर्ण रूप रे इंडिया कथा बुझिबो आ इंडिया रो हेड भाबरे काम करिवो किंतु से रहिला कोठी लंडन रे एठे फरक दीटा के भितरे आउट हमें टर्म में देखिबा किंतु एटा मन रखंतु ये रहिछन्ती लंडन रे लंडन नु हमको डायरेक्ट कंट्रोल करिवे से होचन्ती सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कंप्लीट अथॉरिटी ताकर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर रहइबो कंप्लीट अथॉरिटी आउ ए जो माने प्रथम तरह पई माने 1858 मसिया रे जे फर्स्ट तरह पई हेइतिले ए पोस्ट हासिल करथिले ताको नाम होची लॉर्ड स्टैनली तो लॉर्ड स्टैनली और नाम रखि परिबे 1858 मसिया रे के प्रथम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेइतिले किंतु सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कोठी रहिले लंडन रे रहिले ये इंडिया को आसी काम करिवेनी ये लंडन रे रहि करी हम कथा बुझिबे माने इंडियंस कथा बुझिबे तापरे लॉर्ड स्टैनली को हेल्प करिया पई गोटे 15 मेंबर रो काउंसिल रहइबो 15टा मेंबर रो काउंसिल रहइबो से तो माने मेन मंत्री टाइप रो लोक पार्लियामेंट रो लोक से तांको हेल्प करिया पई 15टा मेंबर रो गोटे काउंसिल रहइबो जार ना रहइबो इंडियन काउंसिल किंतु आपण इंडियन काउंसिल ना सुनी करी एटा केबे भाबिबेनी जे एथरे इंडियन मानको रखा जाईछि इंडियन मानक सहित कोनोसी नबादबा नै इंडिया मानक कंट्रोल करिया पे जो काउंसिल थिला ताको हमें इंडियन काउंसिल करिया देखो 15 जण जो अछन तांको कोन माने तर कॉन्स्टिट्यूशन कोन ना 15 जण भितरु 8 जण मेंबर 7 जण मेंबर 8 + 7 रे को डिवाइड करा गला 8 जण को ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट अपॉइंट करियो तो ब्रिटिश क्राउन को इंडियन को रिप्रेजेंट करियो कि ब्रिटिश क्राउन निज अनुसार माने ब्रिटिश रो जे रानी थिबे ब्रिटिश रो जे क्राउन हेड थिबे से ही डायरेक्टली 8 जण मेंबर को पोस्ट तांको प्रदान करिवे आ बाकी जो 7 जण मेंबर रहिबे तो 7 जण मेंबर काहा को रखा जिवो ना हमर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थिले बोर्ड ऑफ कंट्रोल में
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थिले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मन अछि एबे हम डिस्कस करथि देखंतु ए जे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थिले माने जो शेयर होल्डर कमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ए माने सब जो लोक माने थिले सेई मानक भितरु 7 जन को रखा जिवो कारण देखंतु कंपनी माने संपूर्ण रूप चेंज करा होउची ईस्ट इंडिया कंपनी एते काम कला पूरा गोटे इंडियन टेरिटोरी को निज हाथ को आनिला तो तांकर भी रिप्रेजेंटेशन रखिबा पई 7 जन को कोन करा गला ना बोर्ड ऑफ माने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भीतर रखा गला 7 जन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का भीतर मेंबर रखा गला कि देखो मेजोरिटी रखा क्राउन मेंबर माने 15 जन रू भी 8 जन मेंबर रहिबे क्राउन कर रिप्रेजेंटेटिव 7 जन मेंबर जो जाउचंदी माने आउट गोइंग माने जस्ट 1858 मसिया रे जते बेले लास्ट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो माने थिबे तांको भितरु 7 जन को आनिकरी टोटल 8 + 7 करिकरी 15 मेंबर रो गोटे इंडियन काउंसिल गठन करा जिवो और इंडियन काउंसिल गठन करा जिवो जे की एडवाइस करिवो काहा को एडवाइस करिवो ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को प्रथम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किए लॉर्ड स्टेनली को एडवाइस करिवो एई बडे बडे सिस्टम तयारी करागला तो एथुरु आपन को जो भयटा आपन निश्चित जानि परथुवे संपूर्ण रूप रे केमिति पूरा माने ईस्ट इंडिया कंपनी हाथरु पावर टाको छडी निया गला माने ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भूल करिछि बोलते सिपाही विद्रोह होइछि ना तो ईस्ट इंडिया कंपनी माने ब्रिटिश माने अपेक्षा करी करी रहिले ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत परिश्रम करी इंडिया को दखल कला किंतु लास्ट को 1858 मसिया परे संपूर्ण रूपे निज हाथ को नै आसिले आ ए बडे गोटे किछि सिस्टम तयारी कले इंडियन काउंसिल गठन कले किंतु ए कथा हेगला सब हमर लंडन न तो एमने सब किछि लंडन नाम कंट्रोल करिवे किंतु लंडन रु माने डे टू डे एक्टिविटी करिया पई हम देश रे गोटे की रहिया दरकार की रहिबे हम देश रे सी होचे हमर भाइसरॉय ए पर्यंत 1858 मसिया पूर्वरु जी आमर पूरा हेड रोते कह गवर्नर जनरल कह गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1858 मसीहा पूर्व से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से ना भी रहिबो भाइसरॉय कह नुआ भाव में भाइसरॉय कह माने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जी काम करुथिले माने इंडिया रो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जी काम करुथिले सेही लोक को ही भाइसरॉय भाव में नियुक्त करा जिवो पोस्ट शेयर रहिबो सब किछि शेयर रहिबो किंतु ये भी इंडिया रो हेड भाव में काम करिवे किंतु ये इंडिया रे रहिबे एटा होछि दीटा के भीतर फरक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया रो हेड किंतु से ब्रिटिश पार्लियामेंट रे उत्तरदायी और से लंडन रे रहिबे किंतु एठी हमर जे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को पई जे जो भाइसरॉय पोस्ट हमर एठी तयारी करा गला तो जो भाइसरॉय तयारी हेबे से भाइसरॉय इंडिया रे रहिबे इंडिया कथा बुझिबे आ क्राउन कर गोटे पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हेबे क्राउन कर रिप्रेजेंटेटिव भाव रे काम करिवे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बा भाइसरॉय से पोस्ट को चेंज हेला तो फर्स्ट भाइसरॉय हमर किए थिले लॉर्ड कैनिंग तो लॉर्ड कैनिंग ही हमर गवर्नर जनरल थिले माने 1858 मसिया पूर्व जिते चेंजेस गुड़ाक है सी प्रथम गवर्नर जनरल थे माने ईस्ट इंडिया कंपनी ये काम ही करते ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे 1858 मसीह चेंज है कौन हो गले भाइसरॉय हो गले पूरा खाली पदड़ा चेंज गले जमती कि 1946 मसीह जिते माने 1947 मसीह जो स्वाधीन है देश से समय हरिकृष्ण महताब पूर्व प्रधानमंत्री भाव काम करते ओडिशार मुख्यमंत्री पोस्ट को आसीगले लोक से बस केवल निजर डेजिग्नेशन चेंज हो गला ठीक से भाया ये जगह लॉर्ड कैनिंग जे ईस्ट इंडिया कंपनी जड़े गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भाव में काम करते से बर्तमान भाइसरॉय भाव में काम करेंगे क्राउन कर पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव भाव में काम करेंगे प्रथम आम भाइसरॉय किए हेले लॉर्ड कैनिंग हेले एवं लॉर्ड कैनिंग सहित प्रथम आम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेले लॉर्ड स्टैनली केमती मन रखिए एमती माने देखो गोटे नुआ चेंजेस होइछि ना माने गोटे यदि सीधा मन रहला तो ठीक अछि स्किप कर दियंतु आगु नले सुनन यदि केमती मन रखियार अछि जे माने नुआ तयारी करा गला माने 1858 मसिया गोटे नुआ सिस्टम तयारी करा गला तो नुआ सिस्टम जेतु तयारी करा गला माने पारिबो कि नहीं माने तमे करि परिबो कि नहीं एमती पचरा गला तो लॉर्ड कैनिंग कहले आई कैन माने एई वर्ड रो आपण मन रखि परिबे लॉर्ड कैनिंग कहले आई कैन मु ए सिस्टम को पारिबी से गवर्नर जनरल थिले ताहु कहला भाई तमे गवर्नर जनरल रहइबोनी तमे आस्टु भाइसरॉय पारिबो तो से कहले यस आई कैन तो एई वर्ड रो आपण आई कैन नो मन रखि परिबे लॉर्ड कैनिंग कारण बहुत जण लॉर्ड आकु आसीबे माने भाइसरॉय आसी चलीबे तो हुए तो एटा मनरु मुंडरु चली जाई पारे तो सेई जगह रे आपण एम्ति मन रखि परिबे लॉर्ड कैनिंग कर नाम जे कि हमर फर्स्ट भाइसरॉय ऑफ इंडिया थिले एवं तांको सहित सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के थिले स्टैनली तो कैनिंग हमर इंडिया रही सब कथा बुझिबे किंतु हमर सब सिस्टम को पूरा स्टेडीली रखिया पई पूरा स्टेडीली क्लीन रखिया पई किए काम देबे स्टैनली लंडन ने बसचंती बड़े साहब हमर से होचंती लॉर्ड स्टैनली हमर सब कथा हमर स्टेडी एमति मन रखि परिबे हमर सिस्टम को स्टेडीली चलेया पई लॉर्ड स्टैनली बसचंती लॉर्ड कैनिंग कहले यस आई कैन लॉर्ड स्टैनली कहले आई विल एंश्योर दैट एवरीथिंग विल गो इन स्टेडी एंड क्लीन मैनर तो लॉर्ड स्टैनली ऊपर रही गला हमर बॉस जे कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रही तो एमिति हेकरी हमर पूरा सिस्टम पूरा गोटे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर रे चेंजेस हे गला बहुत गुडे एमसीक्यू हे परिबो एते पूरा हैला माने जो नियम ओडाकर चेंजेस हैला को नियम अनुसार एटा हेतिला ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक्ट रो ना भी आसी पारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 मसीहा रे 1858 मसीहा जदि आपण मन रखिचंती जे एई माने 1858 मसीहा टा आपण केमति कनेक्ट करि परिबे 1857 ने सिपाही विद्रोह हैला से कारण ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आसिला तो आपण कनेक्ट करी मन रखिले दि जिनिस को मन रखि परिबे आकु जिबा या पर हमर गवर्नर जनरल हे गले हमर भाइसरॉय हे जैतिले भाइसरॉय को हेल्प करिया पे 15 जनकर गोटे इंडियन काउंसिल रहला आमे से लंडन कथा सरी गला इंडिया रे आमे देखिले भाइसरॉय को नियुक्त करा गला लॉर्ड कैनिंग को किंतु लॉर्ड कैनिंग को भी सपोर्ट दरकार ना माने जणे लोक तो हे परिबोनी तो तांको सपोर्ट करिया पे गोटे एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहला इंडियन काउंसिल अलगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल अलगा सेपरेट करके माइंड रखंतु इंडियन काउंसिल लंडन ने बसचंदी एग्जीक्यूटिव काउंसिल एग्जीक्यूटिंग द पावर्स इन इंडिया एग्जीक्यूटिंग काउंसिल जी रहिले से इंडिया रहिले से गवर्नर जनरल को असिस्ट करिवे गवर्नर जनरल वाइसरॉय जे बेहि जेचंती तांको से असिस्ट करिवे माने 1858 मसिया रे परे गवर्नर जनरल जे वाइसरॉय मध्ये से तो लॉर्ड माने हमर लॉर्ड कैनिंग जे थिले तांको असिस्ट करिया पई गोटे एग्जीक्यूटिव काउंसिल तयारी करा गला से काउंसिल ले की रहिबे ना निजे गवर्नर जनरल तो रहिबे माने वाइसरॉय निजे रहिबे ए जगह रे निजे हमर वाइसरॉय रहिबे वाइसरॉय को छोड़ा माने पूरा सैन्य बाहिनी कथा बुझिया पई जने कमांडर इन चीफ रहिबे कमांडर इन चीफ रहिबे बाकी सब फाइनेंशियल डिपार्टमेंट अलग अलग जा सब डिपार्टमेंट अछि आउ 4 जण लोक को रखा जिवो से कथा सब बुझिया पई तो टोटल 6 टा मेंबर वाइसरॉय प्लस कमांडर इन चीफ प्लस बाकी 4 टा मेंबर यार माने नंबर्स आकु जे की चेंजेस हेछि 1918 मसिया पर एटा 6 टा आउ मेंबर बॉडी दे हेछि किंतु स्टार्टिंग रो एमति थिला वाइसरॉय कमांडर इन चीफ आउ 4 जण ऑर्डिनरी मेंबर्स जो माने की एको सहित थिले आउ एटा पूरा एग्जीक्यूटिव काउंसिल कर जाथला किंतु आपण गोटी जिंस देखंतु डर सिना हे गला माने सिस्टम सिना चेंज हे गला इंडियन माने को किछि रखाइनी से लंडन हो बा इंडिया हो शासन आमको करा जीवो पैसा आमडु निया जीवो किंतु ना इंडियन काउंसिल जणे इंडिया इंडियन अछंती ना एग्जीक्यूटिव काउंसिल जणे इंडियन अछंती को जगह रे भी केही भी इंडियन ए पर्यंत ना तो ए समस्या को ए गुटी को देखि गिरी जो इंडियन मानकर जहा भी प्रॉब्लम थिला एडो देखि गिरी 1861 रे 1861 बेसी दिन नहीं कैनिंग भी अछंती 58 ने सब काम हैला 1861 माने 3 वर्ष परे हमर कैनिंग 62 एरिया पर्यंत थिले तो 1861 मसिया रे ए जे एग्जीक्यूटिव काउंसिल थिला एग्जीक्यूटिव काउंसिल कोठार मिसेइबेनी दीटा को इंडियन काउंसिल लंडन ने बसचंती 15 जणिया कमिटी एठी इंडियन काउंसिल पर ए जगह एग्जीक्यूटिव काउंसिल थिले एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थिला सेइटा रे एग्जीक्यूटिव काउंसिल रे हमर एग्जीक्यूटिव काउंसिल रे हमर जो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल थिला ताकू एक्सटेंड कर दिया गला वाइसरॉय जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थिला ताकू एक्सटेंड कर दिया गला एवं एक्सटेंड करिकरी ताकू गोटे इंपेरियल इंपेरियल माने गोटे सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउंसिल रे गठन करा गला इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल रे गठन करा गला माने भाबंतु 4-5 जण लोक थिले आगुआ सब किसी डिस्कस करते किए ना गवर्नर जनरल बसते कमांडर इन चीफ बसते 4 जण आमर मेन मेन मंत्री मान सब बसते सब कथा बुझुले कि इंडियन लोक नथिले तो एको ए जो अपोज हैला माने इंडियन मानकर जो इथरे माने डिससैटिस्फैक्शन थिला इंडियन माने उठी चुप करिया पई से जगह कोन करा गला ना एग्जीक्यूटिव तो रहइबो माने से एग्जीक्यूटिव आउटे सेपरेट किछ होबनी से एग्जीक्यूटिव रहइबो से एग्जीक्यूटिव रो नंबर को टिके बढ़ी दे जिवो तो उठी एक्सपांड कर दिया जिवो आ तार ना दिया जिवो इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल माने इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जीक्यूटिव काउंसिल रो डिफरेंट नो भाबंतु एग्जीक्यूटिव काउंसिल एति की थिला ताकू टिके एक्सटेंड कर दिया एति कर दिया गला माने जो माने ए जगह रे थिले से माने डुअल मेंबर एथरे भी रहइबे सेथरे भी रहइबे तो सेडो खाली जस्ट एक्सटेंड कर दिया जायछि ताले हमर माने सेथरे कोन नियम रहिला केमति एक्सटेंड करा जिवो ना वाइसरॉय चाहिले 6 रु 12 जण मेंबर को आनि कि तादर रखि परिबे मेंबर्स टू इज एग्जीक्यूटिव काउंसिल ताकर जो माने ओरिजिनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल ताकर अछि सेइथरे 6 रु 12 जण मेंबर को ऐड कर दिया जाय परिबो से माने सब माने इंडियन हेई पारंती किंबा ब्रिटिश हेई पारंती तो लॉर्ड कैनिंग बहुत जण राजा को माने बनारस रो राजा एमति अलग अलग सब राजा थिले ताकू 2-3 जण राजा को मेन मेन राजा को एते इंक्लूड करथिले जा फल कि इंडियन मान को टिके चुप करा जाय परिबो इंडियन मान को जो सब माने 1857 मसिया जो टिके डरी गिरी जंदी से माने इंडियन मान को टिके तो भय अछि कोन माने कर देबे तो से भय जोगु से इंडियन मान को 1861 मसिया रे गोटे पोजीशन देले किंतु एटा देखि कि एटा आपण भावंतु नाही जे इंडियन माने पूरा आसी गले मेन धारा को इंडियन माने सब कथा बुझिबे केते पावर रहितला इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एटा देखंतु प्रथम तो एटा गोटे मुख्य बॉडी नुआ एटा गोटे एडवाइजरी बॉडी इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल गोटे एडवाइजरी बॉडी थिला बस एडवाइस करिवो आ एडवाइस को सुनिया पे की अछंती सुनिया पे आम ऊपर वाइसरॉय अछंती प्रथम तो तांकर एग्जीक्यूटिव अछंती तांकर एग्जीक्यूटिव अछंती देखो ऑर्डर टा किछ ए बलिया इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एठी आसी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल एठी तांको ऊपर ये डुअल मेंबर है कि ये एग्जीक्यूटिव एठी रहबे एग्जीक्यूटिव को ऊपर वाइसरॉय रहबे वाइसरॉय ऊपर बड़े साहब हमर बसचंती एसओएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट
ताले गोटे लेजिस्लेटिव काउंसिल रे जो 2-3 जण राजा एठी बसचंदी एमे जदी किछि कहि भी देले आपन लागुची जे एठी अप्रूव हेकरी एठी अप्रूव हे जो से कथाटा माने इंडियन मानक फॉर रे गोटे कथा हेतिबो सेटा एते बाटा अप्रूवल हे परियो तो सेटा नथिला केते कोनोसी कथा एमती हे परिबो नाही एटा गोटे मात्र एडवाइजरी बॉडी थिला एटा गोटे क्विक बॉडी थिला ना को खाली एडे बड इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ए गोटे क्विक और एडवाइजरी बॉडी थिला बजेट रो डिस्कशन सेदरे हे परिबो नाही इंपोर्टेंट डिस्कशन सेदरे हे परिबो नाही एला कोन डिस्कशन करियो कोन खाइलो कोन पीलो ए डिस्कशन करियो तो बजेट डिस्कशन हे परिबो नाही इंपोर्टेंट डिस्कशन हे परिबो नाही एडमिनिस्ट्रेशन विरोध रे कोनोसी क्वेश्चन रेज करा जाय परिबो नाही एमिति एडमिनिस्ट्रेशन काई करछो एमिति करनी एमिति कर कोनोसी क्वेश्चन रेज करा जाय परिबो नाही बस खाली ना को तमे आसी बस राजा माने बस तमे इंडियन माने हम संगे अछ सेम गोटे भावना रखिया पे गोटेटा करा फॉर एनी एक्ट ऑफ द गवर्नर जनरल अप्रूवल इज मैंडेटरी जदी कोनोसी एक्ट जदी इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल गोटे किछि एक्ट आणुचंती ताले से एक्ट को प्रथमेतः वाइसरॉय बा गवर्नर जनरल जो लेखा छि वाइसरॉय सेटा तो एटा डिफरेंट नो तो वाइसरॉय मानकर अप्रूवल मैंडेटरी माने एमाने जदी किछि करि भी देले तो एमान भीतर समस्त इंडियन नहंती ब्रिटिशर्स भी अछंती इंडियन बहुत कम अछंती तो यांको भीतर जदी किछि करि भी देले तो वाइसरॉय अप्रूवल मैंडेटरी बिना वाइसरॉय अप्रूवल ले हेबो नाही बाय चांस माने वाइसरॉय को कथावार्ता करिकि गोटे सब सेट करिकि वाइसरॉय को आको गोटे बिल तमे पठेइ भी दबो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जदी मना कले ताले किछि हेबरियोनी सेक्रेटरी स्टेट होचन मेन लोक जदी सब पास हेकरी भी आसीछि समस्त मानि भी जाइछंती किंतु सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जदी मानु नाहंती ताले कथा हे परिबो नाही आ तो रिवाइज कर दियंतु कि हमर 2 जण लॉर्ड थिले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किए थिले हमर स्टेनली सब स्टेडली बुझिया पे किए थिले लॉर्ड स्टेनली हम देश रे वाइसरॉय किए थिले प्रथम लॉर्ड कैनिंग कैन यू यस यू कैन तो लॉर्ड कैनिंग तो एमते हेकरी हमर एता गला तो इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो हम गोटे माने कोन पिला कांदिले जेमति बुझिया पे गोटे किछि दबा कथा ठीक सेही बलिया हम तो कांदी नथिले माने अटैक करा हेतिला तो भयर गंजिया पे ठीक ए बलिया नॉमिनेशन तांको पे दे देथिला तापरे हमर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स माने जो जेतक हमर नॉन ऑफिशियल मेंबर रहिले इंडियन मेंबर जो रहिले एमानको गवर्नर जनरल बा वाइसरॉय ही नॉमिनेट करथिले तो वाइसरॉय नॉमिनेट करथिले माने काहा करिवे ताकर सब संग माने जो प्रिंसेस हमर लोकल प्रिंसेस जे मिनिस्टर जमींदार मर्चेंट बड़ बड़ लोक को जॉइन करिवे एमी तो हवन जोटे चाष करछि गोटे लोक ताको नेकी आस गोटे टीचर अछि ताको नि आइजो माने कॉमन लोकन कथा भी किछि बुझियार नाही माने ए जो नाम को मात्र जो इंक्लूड भी करा जायतिला से नाम को मात्र रे भी छोट लेवल लोकंकर नाम नथिला छोट लेवल ए सेंस रे कहूची जे से समय रे जे हायरार्की रे तळ लेवल ले लोक थिले माने जो माने कि चाष काम करथिले जांग पाखरे पैसा कम थिला जो माने कि जमींदार श्रेणी रे नथिले जो माने मर्चेंट श्रेणी नथिले से माने मध्ये इंक्लूड करा जाउ नथिला कारण ताकर रिलेशन वाइसरॉय सहित हबो कुआडे वाइसरॉय तो बड़ बड़ लोकन सहित मिसिबे आ सब तक माने वाइसरॉय ही निष्पत्ति नेबे जे किया आसे लेजिस्लेटिव काउंसिल रहइबो तो एति पे एटा गोटे गोटे सिस्टम तो हेइतिला किंतु किसी काम को नथिला यहा छोड़ा आउ गोटे माने साइड इफेक्ट हमें कहि परिबा जे 1857 मसिया बेलकू 1857 मसिया बेलकू बा 1870 रु 1857 मसिया परवर्ती समय भी हो 1857 हो 1858 ए नियम आसिला ता परवर्ती समय हो बचे हमर जो ब्रिटिशर्स माने माने वाइसरॉय जो हमर शासन करथिले एबेर कथा एमिति नुहे जे माने संगे संगे कम्युनिकेशन हे जेबो जे माने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फोन करिवे जे वाइसरॉय बाबू एटा प्रॉब्लम हेछि संग संग एटा कर दियो माने इंडियन माने एटी ऑपोजिशन करछंती ताकू रास्ता रो हटि दियो एमिति किछि भी माने कम्युनिकेशन एते फास्ट नथले से समय रे ब्रिटिशर्स माने कम्युनिकेशन पठेइबे ता टाइम लागियो आसी कि वाइसरॉय के पाखरे पहुंचे को वाइसरॉय से अनुसार एक्शन नेबे तो टाइम लागुथिला जिंस पत्र सब होबारे तो जो टाइम लागुथिला तो से टाइम कारण रु माने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेड थिले किंतु वाइसरॉय के पाखरे तथापि पावर रहउथिला माने वाइसरॉय माने एते बाटरो टिकी बसचंदी से कहिले हां ताको कथा सुनियार अछि ताको रिपोर्ट करियार अछि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को किंतु माने काम तो वाइसरॉय को ही करियार अछि ना माने माने हमर लोकल ग्राउंड लेवल तो वाइसरॉय ही एक्ट करचंदी तो वाइसरॉय कर किछि किछि पावर थिला किंतु से पावर आ 1870 मसिया परे आ रहिलानी कारण 1870 मसिया रे हमर रेड सी को देखि देखो ए जगह रे आपण मैप देखि परतबे एडी होचे हमर इंडिया एडी होचे हमर सऊदी अरेबिया रीजन एडी होचे हमर लंडन तो ए पानी रे देखि ए जगह रे हमर रेड सी अछि लोहित सागर ए रेड सी देखि ए पटो साइड रे हमर इंडिया टू लंडन को गोटे पूरा सबमरीन केबल बिछे दिया गला तो सबमरीन केबल बिछे देवा कारण बहुत फास्ट कम्युनिकेशन हवा आरंभ होला तो जेहेतु बहुत फास्टर कम्युनिकेशन हे गला वर्तमान सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को तमे माने किछि लुचेई कि तांको साइड रे रखि किछि काम करि परिबनी माने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को पाखरे संगे संग कथा पहुंचबो इंडिया रे जहां भी हेले से साइड जहां ऑर्डर देबे वाइसरॉय को मानियो पड़िबो तो वाइसरॉय को भी एते पावर रहिले नै पूरा हमर बड़े साहब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जे थिले से ही मुख्य भूमिका ग्रहण कले डायरेक्ट
कंट्रोल ऑफ सेक्रेटरी स्टेट आउ वाइसरॉय बा गवर्नर जनरल का वैल्यू बहुत कमी कमी गला तो इंडिया लोक इंडियन मानक द्वारा नुहे इंडिया रे थिबा ब्रिटिशर्स मानक द्वारा भी नुहे लंडन रो पार्लियामेंट रे बसिथिबा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को द्वारा सीधा सड़क कंट्रोल हेले इंडियन मानकर वॉइस को किछि भी सुना गला नाही एवं जहाँ है माने प्रोब्लेम जारी रहा इंडियन मानकर तल लेवल लोकंर कथा जनरल कमन मैन लोक के भी सुनले ना आज एटा समरी थिला एटा देखि दियंतु माने आपण जदी कन्फ्यूजन किछ होतो त ए पेज रो आपण देखि परिबे हमर दीटा माने पूरा जो स्ट्रक्चरल चेंजेस टा हला गोटे हला लंडन ने चेंज ऊपर साइड रे एटा होची लंडन ने चेंज एटा होची लंडन ने चेंज एटा होची इंडिया रे चेंज एटा होची लंडन ने चेंज एटा होची इंडियन ने चेंज लंडन ने हमर बसिले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश पार्लियामेंट रे तांकर गोटे 15 जने इंडियन काउंसिल रहिला एडवाइजरी बॉडी रहिला से एडवाइजरी बॉडी कथा मानिया भी तांका पई गुरुत्वपूर्ण न सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जहा चाहे से करिवे सेक्रेटरी एडवाइजरी बॉडी आ इंडिया रे के रहिले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बा वाइसरॉय रहिला हमर एटी आउ वाइसरॉयंकर गोटे कोन रहिला एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहिला जोटा कि परवर्ती समय एक्सटेंड हेकरी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हेतिला केबे हेतिला 1861 मसिया रे हेतिला 3 वर्ष पर 3 वर्ष भूल बुझिया ताको टिके 1858 मसिया रे करते देले कि इंडियन मानू केमति निज आडू टिके आनिबे से जो 3 वर्ष भितरे गोटे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल करि देथिले एमती गला ता छडा हमर रहिला प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ये गला हमर बड़ बड़ लेवल कथा एबे असला हमर छोटो लेवल कथा माने जेमती प्रोविंस माने कोन एबे जेमिति पूरा इंडिया रहिछि इंडिया अलग अलग राज्य रहिछन्ती माने मेन तो प्रधानमंत्री रहिले किंतु राज्य मानकर मुख्यमंत्री भी अछन्ती ना राज्य को संभाळिया पई तो ठीक सेही प्रकार सिस्टम से समय मध्ये रहितिला प्रोविंस सब जो थिला से प्रोविंस मानको एडमिनिस्ट्रेशन करिया पई लोकल लेवल रे सब गोटे गवर्नमेंट थिले माने आपण चीफ मिनिस्टर कहि परिबे वाइसरॉय प्रधानमंत्री टाइप रो आ ये होचन्ती प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन माने मुख्यमंत्री टाइप रो लोक तले इंडिया को बहुत गुडे प्रोविंस डिवाइड करा गला इंडिया को बहुत गुडे प्रोविंसेस डिवाइड करा गला ता भितरु तीनटा प्रोविंस जो माने कि ब्रिटिशर्स का पई मुख्य थिले जो माने कि सिपाही विद्रोह रे जोग देई नथिले जो माने कि बहुत इंप्रूव थिले से मानक भितरे किए थिले जण हैला बेंगल प्रोविंस तापर होची मद्रास प्रोविंस तापर होची बॉम्बे प्रोविंस तो ये तीनटा को जगह जो एडवांस जगह तीनटा का रहिला बेंगल मद्रास और ए जगह हमर बेंगल ए जगह रे बॉम्बे ए जगह रे मद्रास प्रेसिडेंसी ए तीनटा को प्रेसिडेंसी माने तीनटा को जो प्रोविंस थिला से प्रोविंस को गोटे अलगा नाम दिया जाउतिला प्रेसिडेंसी माने समस्त प्रोविंस थिले किंतु ए तीन जन को प्रेसिडेंसी कहता से जो आपण बेंगल प्रेसिडेंसी सुनिथिबे मद्रास प्रेसिडेंसी सुनिथिबे बॉम्बे प्रेसिडेंसी सुनिथिबे तो जे प्रोविंस समस्त प्रोविंस किंतु ए तीनटा को प्रोविंस को मुख्यतः प्रेसिडेंसी रो भूमिका दिया जायतिला यार शासन भार को संभाळिया पई कारण काहे करे जायतिला कारण यार टिके माने अलगा कंडीशन थिला जो माने प्रेसिडेंसी जो माने रहिले प्रेसिडेंसी माने ए तीन जन जो रहिले हमर बेंगल बॉम्बे और टिके थिला मद्रास ए जो तीनटा को रहिले बेबोमा बेंगल बॉम्बे मद्रास ए मानकू किए ताकर हेड रहिबे से रहिबे गवर्नर रहिबे ए मानकर हेड गवर्नर जनरल वाइसरॉय प्रधानमंत्री से बसछन्ती ये स्टेट लेवल कथा कहउछ हम प्रेसिडेंसी लेवल कथा कहउछ तो गवर्नर रहिबे सेमती गवर्नर कर गोटे एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहिबो सेतरे पुनी तीन जन लोक रहिबे मनकू बुझिया पई सेमती गोटे एग्जीक्यूटिव काउंसिल एडवाइजरी बॉडी रहिबो तापरे आ जो रहिला माने मेन प्रेसिडेंसी सरला तापर जो प्रोविंस ओडा को रहिला माने जो छोटो मोटो प्रोविंस को रहिला सब तो प्रोविंस किंतु प्रोविंस रो तीनटा प्रेसिडेंसी रे हमर गवर्नर रहिले किंतु प्रोविंस ओडा को रहिला प्रोविंस रे आ गवर्नर न लइकरी लेफ्टिनेंट गवर्नर रहिबे नचेत हमरा चीफ कमिश्नर रहिबे दी प्रकार प्रोविंस ले समय मेजर प्रोविंस रे हमर लेफ्टिनेंट गवर्नर होतिले आ माइनर प्रोविंस छोटो छोटो प्रोविंस ओडा करे हेड तंगरा चीफ कमिश्नर भाबरे काम करतिले तो ये तीनटा को मेन पद आपण कहि परिबे गवर्नर एलजी एंड चीफ कमिश्नर ये जो गवर्नर थिले तले गवर्नर तो मेन लोक प्रेसिडेंसी रो लोक तांको सीधा अपॉइंट करतिले क्राउन ये पूरा लंडन नो कंट्रोल कराउतिले याकू क्राउन कंट्रोल करतिले क्राउन कंट्रोल माने आपण सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रो भूमिका ए जगह रे कहि परिबे क्राउन याकू संपूर्ण रूपे ताकू अपॉइंटेड करथिले किंतु ये जो छोटो लोक समान रहिले ये सब तळ लेवल लोक सब रहिले ताकू वाइसरॉय अपॉइंट करथिले ताकू हमर वाइसरॉय अपॉइंट करथिले माने हमर प्रधानमंत्री अपॉइंट करथिले कहि परिबे लेफ्टिनेंट गवर्नर हुंतु किंबा लेफ्टिनेंट गवर्नर को छडा हमर जो चीफ कमिश्नर हुंतु माइनर प्रोविंस मानकरे से जगह रे हमर वाइसरॉय अपॉइंटमेंट करथिले क्राउन करथिले गवर्नर को प्रेसिडेंसी मानकर ताने प्रेसिडेंसी गुडाक वाइसरॉयर अंडर रे थिले मध्य तांको जो अपॉइंटमेंट ता थिला सेटा उपरु होतिला बड़े साहब क्राउन को सहायता रे एटा करथिले तो एमति थिला कि जे स्ट्रक्चर यार तार एडवाइजरी बॉडी मध्य थिला तापरे माने धीरे धीरे एक्सटेंड प्रथमे एडवाइजरी बॉडी बेंगल बॉम्बे और मद्रास से थिला तापरे आकु एक्सटेंड कर दिया गला
तो एटा थिला पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस केमिति एडमिनिस्ट्रेशन लेवल ले पूरा चेंज करा गला संपूर्ण रूप में ब्रिटिश मानकर काया माने ब्रिटिश मानकर पावर को संपूर्ण रूप रखि दिया गला तापरे आउ खारे चेंजेस करा गला खाली एडमिनिस्ट्रेशन ने चेंज करले होबनी आर्मी रे चेंजेस ए जो सिपाही विद्रोह हेतिला सिपाही विद्रोह कॉमन मैन स्टार्ट करथिले सिपाही माने सिपाही म्यूटिनी तो सिपाही मानक कथा बुझिया को पड़िबो तो ईस्ट इंडिया कंपनी समय रे जो सिपाही मानक भितरे प्रॉब्लम डा हेतिला ताको सॉल्यूशन करिया पई ब्रिटिशर्स माने कोन कले ना ईस्ट इंडिया कंपनी माने यूरोपियन आर्मी को माने जो पूरा मेन आर्मी हमर थिला माने ईस्ट इंडिया कंपनी जो आर्मी थिला से आर्मी टा को हमर क्राउन ट्रूप्स संगे मिसई दिया गला माने ईस्ट इंडिया कंपनी रा आर्मी को आजीव नाही माने ईस्ट इंडिया कंपनी जहां भी सब आर्मी थिला माने से यूरोपियन हुंतु इंडियन हुंतु समस्त को गोटे माने गोटे ट्रूप क्राउन अंडर से माने काम करिवे पूरा गोटे क्राउन ब्रिटिश इंडिया रा आर्मी बाबर काम करिवे और ईस्ट इंडिया रा ना रहियो नाही कंपनी रा ना रहियो नाही से माने क्राउन अंडर रे काम करिवे तापरे यूरोपियन मानकर संख्या बढ़ी दिया गला माने जते कम यूरोप माने सब तो यूरोपियन हे परिबेनी कारण यूरोप रे ते लोक भी नाहंती जे से माने आसी समस्त जगह युद्ध करियो आसीबे से माने बिजनेस करियो आस्ते माने युद्ध करियो आसी नाहंती तो यूरोप रे तो समस्त यूरोपियन हे परिबेनी तो यूरोपियन मानकर संख्या को बढ़ी दिया गला आर्मी रे जति की लोक थिले यूरोपियन थिले तांकर संख्या को आटिके बढ़ी दिया गला तापरे पूरा माने की जियोग्राफिकल एंड मिलिटरी पोस्टिंग माने जो पोस्टिंग माने को जगह रे को माने रहिबे पोजीशन मानकर को एरिया रे माने जो जगह गुडा बेसी संवेदनशील थिला बेसी वैल्यूएबल थिला से जगह रे केमती इंडियन मानक संख्या कम रखा जाय परियो को जातिर लोक सेठी रहिबे ए जाति मानकर संख्या माने बहुत तांको माइंड को आस्तिला माने प्रथम तरफ पई ब्रिटिशर्स माने डिवाइड एंड रूल करिया स्टार्ट करथिले से माने आर्मी भितरे गोटे डिवाइड स्टार्ट करथिले तमे मार्शियल रेसेस रो तमे नॉन मार्शियल रेसेस रो जो माने सिपाही विद्रोह समय रे ब्रिटिशर्स मानन को सपोर्ट करिथिले तांको सहित रहिथिले तांको से माने मार्शियल क्लास कहि देले से माने जेमति कि सिख होंतु गुरखा होंतु पठान होंतु ए माने ब्रिटिशर्स माने एमानन को सब कहिले जे तमे मार्शियल क्लास रो आ जो माने मेन लोक थिले जो माने कि माने अभद्र लोक थिले अभद्र लोक ही स्टार्ट करथिले ना अवध होंतु बिहार होंतु सेंट्रल इंडिया लोक होंतु ई जगह सब जो लोक थिले ताकू कहले तमे हमकु सपोर्ट करनथिलो तमे हमकु अपोज करथिलो तम जगु सिपाही विद्रोह हितला तो तांको नॉन मार्शियल रेसेस कर दिया गला माने गोटे सैन्यक भितरे मार्शियल रेसेस कर देले जो माने ब्रिटिश कर सपोर्टर आ जो माने ब्रिटिश को सिपाही विद्रोह सपोर्ट करि नथिले तांको नॉन मार्शियल रेसेस रे रखि दिया गला एहा छडा हिंदू मुस्लिम कर यूनिटी ताको भांगिया पई मुस्लिम माननकु सेपरेट करिया पई हिंदू मानक ठारू से भावना मध्ये माने हिंदू मुस्लिम भावना मध्ये अना जाइतिला आ स्टार्टिंग रु इंग्लिश माने मुस्लिम मानकु ही दायी करथिले सिपाही विद्रोह हबा पई कारण मुख्य जे थिले तांकर माने एम्परर ऑफ इंडिया जे बहादुर शाह जाफर थिले से भी मुस्लिम थिले तांको अंडर सब काम होइतिला तो मुस्लिम माने होचनि मुख्य बोली सिपाही विद्रोह समय रे ये माने इंग्लिश माने तांको माने दायी करथिले सिपाही विद्रोह रो आ बहुत जण मुस्लिम को हत्या मध्ये करा जाइतिला एवं परवर्ती समय रे सेही कारण रो ही मुस्लिम मानकर जो ये थिला माने तांकर डेवलपमेंट थिला धीरे धीरे कमी गला कारण ब्रिटिशर्स माने मुस्लिम मानकर स्टार्टिंग और डेवलपमेंट पई बहुत कम सचेतन थिले तांको सेपरेट कर दिया गला तांको सेपरेट करबा आरंभ कले तो जहां भी हो इंडियन मध्य रे इंडियन आर्मी को भितरे जो हिंदू मुसलमान भाव थिला सेटा को सृष्टि करा गला मार्शियल रेसेस नॉन मार्शियल रेसेस तैयारी करा गला कोठी की रहबो सेटा रखि दिया गला तो संपूर्ण रूप रे हमर जो मेन आर्मी थिला ताको सेपरेट कर दिया गला भांगी दिया गला थर्ड पॉइंट माने प्रथम पॉइंट थिला एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस सेकंड पॉइंट थिला मिलिटरी चेंजेस थर्ड पॉइंट ए सब हेइथिला का जो स्टार्टिंग रे मने पकांदु दुईटा वीडियो तळे हमें पढिथिले ए सब स्टार्टिंग का जो गइथिला हमर कैनिंग तो आसी फ्यूएल लगैथिले कि तांका पूर्व जने महान व्यक्तित्व थिले तांका ना कोन थिला डेल हाउसी लॉर्ड डेल हाउसी गोटे घर भंगा काम करथिले कोन करथिले से डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आनिथिले डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जे जदी आपणकर माने गोटे कहार पुत्र संतान नाही ताले से झियो मानकु बसई परिबेनी निज शासन गादी रे कोनोसी पोष्य संतान भी ग्रहण करि परिबे नाही से जो लक्ष्मीबाईंकर असुविधा हला नाना साहेब तंटिया टोपे जहां भी सब से अटैक हेता सब से रिलेटेड हे गला कारण नाना साहेब हमें देखि से पूरा डिटेल्स रे पूर्व वीडियो रे नाना साहेब को केमती प्रॉब्लम करथिले ब्रिटिशर्स माने पैसा देग मना करथिले तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इन सब किछि प्रॉब्लम एक कंडीशन तैयार करथिला तो 1859 मसिया रे ब्रिटिशर्स माने माने स्पेसिफिकली लॉर्ड कैनिंग जो वाइसरॉय थिले से डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को संपूर्ण रूप उठे दिथिले जे माने आउ से सिस्टम रहइबो नै डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स रहइबो नै तो एमसीक्यू हे पारे शॉर्ट क्वेश्चन डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आनिथिले किए हाउसी डेल हाउसी एवं उच्छेद कले किए हमर लॉर्ड कैनिंग 1859 मसिया 57 मसिया पर ही होबना 1858 पर 1859 मसिया रे हमर एटा लॉर्ड कैनिंग याको संपूर्ण रूप उच्छेद करथिले
ଏହା ଛଡ଼ା ଏଇ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଥିଲା ଏଟା ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଲା ଯେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ସବୁ ଯୋଉ ଥିଲେ ଏମାନେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ବଡ ବଡ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଟାଇପର ଲୋକ, ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ଟାଇପର ଲୋକ, ଯୋଉମାନେ ରାଜା ଟାଇପର ଲୋକ, ସେମାନେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ତ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଭାବିଲେ ଏ ରାଜା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଟାକ୍ କରିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଡେଲହାଉସି କଣ କରୁଥିଲେ, ସିଧା ଆନେକ୍ସ କରିବୁ, ଅବଧକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଭାବିଲେ କାହିଁକି ଆଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରିବା, ଏମାନେ ତ ମେନ୍ ସିପାହୀ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମାନେ ହେଲ୍ପ କଲେ, ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡେ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କଲେ। ତ ସେ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଚାଲିବା, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆମର ହତିଆର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜାଗାକୁ ଆମେ ନବାନି। ତ ୟା ପରଠୁ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଲା। ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନେକ୍ସ ନ କରିକିରି ସେମାନେ ଏ ଯୋଉ ଆମର ଏଇମାନେ ଥିଲେ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ର ସବୁ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହତିଆର ଭାବେ ୟୁଜ କଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କରିକି ରଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଲିଡର ରହିବେ ଆମର ଇଏ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲୟାଲ ଥିଲେ। ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ଲୟାଲ ଥିଲେ। ସେ ଯୋଗୁ ଆମର ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଚର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ୟୁଜ କଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଯାହା ବି ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ୍ ଅଫ ଲ୍ୟାପ୍ସ ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯିଏ ବି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହୁଅନ୍ତୁ ପୁତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଯାହାକୁ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତୁ ସେ କରିପାରିବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଫ୍ୟୁଚରରେ କୌଣସି ଆନେକ୍ସେସନ କରିବେନି ବୋଲି ବି ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ କଥା ଏଇଟା ଯେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ପାରାମାଉଣ୍ଟ ପାୱାର, ମାନେ ମେନ୍ ପାୱାର ହେଇକି ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ରହିବେ। ଏତେ କଥା ପରେ ଏମିତି କହିବନି ଯେ ଆମେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସକୁ ହଟେଇ ଦଉ ରାସ୍ତାରୁ, ସେମିତି ହବନି। ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଆଜ ଅ ହେଡ୍ ରହିବେ, ତ ସବୁ କଥା ମାନିକିରି ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଟାକ୍ କରିବୁନି, ଆମେ ଆନେକ୍ସ କରିବୁନି, ତମର ହେୟାର ତମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦାୟାଦ କିଏ ହେବା ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦଖଲ ଅନ୍ଦାଜି କରିବୁ ନାହିଁ। 1876 ମସିହାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଲିଙ୍କ ହେଇଥିଲା ସେ ରିଲେଟେଡ। 1876 ମସିହାରେ ଆମର ଯୋଉ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଥିଲେ, ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ରୟାଲ ଟାଇଟଲ ଆକ୍ଟ ଆସିଥିଲା। ସେ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଏମ୍ପ୍ରେସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା କରିଦିଆଗଲା। 1876 ମସିହାରେ ଏମ୍ପ୍ରେସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇଥିଲା। ଏହା ରିଲେଟେଡ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଷ୍ଟୋରି, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସକୁ ଆସିବା, ସେଟା କନେକ୍ଟ କରିବା ଆପଣ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସହିତ। ଏଟା ଖାଲି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, 1876 ମସିହାରେ ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କୁ ଏମ୍ପ୍ରେସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଦିଆଗଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରିଟିଶ ସୋଭରେନିଟି ରହିବ ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆନ ସବକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଉପରେ, ଇଣ୍ଡିଆ ଉପମହାଦେଶ ଉପରେ। ସବକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ମାନେ ତିନି ପଟେ ପାଣି ଘେରିକି ଅଛି, ଚାରିପଟେ ହେଲେ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ, ତିନି ପଟେ ଅଛି ମାନେ ସବକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ। ତ ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆନ ସବକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟରେ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ହିଁ ଆମର ଏମ୍ପ୍ରେସ ଭାବରେ କାମ କରିବେ 1876 ମସିହା ପରଠାରୁ। ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ମଧ୍ୟ ଦଖଲ ଅନ୍ଦାଜି କଲେ, ତାପରେ ସପ୍ରେସ କଲେ, ମାନେ ବାକି ନେଲେନି, ମାନେ ରାଜା ମାନଙ୍କର ଜାଗା ନେଲେନି ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସପ୍ରେସ କରିକି ରଖିଲେ, ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ଦଖଲ ଦେଲେ। ବାକି ଯୋଉମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆର ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତ ମନ ଇଚ୍ଛା ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଚାଲିଲେ। ତ ଏମିତି ହେଇକିରି ଆମର ପୁରା ଯୋଉ ଭୟ ଥିଲା, ମାନେ ଫିୟର ଆମେ କହିପାରିବା, ଏଇ ଫିୟର ଯୋଗୁ ଏଇ ସବୁ ଚେଞ୍ଜେସ ହେଇଥିଲା। ଭୟ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଛାଡିକି ପଳେଇଲା ଭଳିଆ ଭୟ, ଭୟ ଏଇଥିପାଇଁ ଥିଲା ଯେ ଯେମିତି କଥା ଚାଲିଛି ସେମିତି ଚାଲିପାରିବନି। 1857 ମସିହାର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ 1858 ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଗୋଟେ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରେ ଚେଞ୍ଜେସ ଆଣିଲା, ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ତାଙ୍କ ହାତକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏକାଠି ହଉଛନ୍ତି ସେ ପୁରା ଆମ ଏଗେନଷ୍ଟ ଏକାଠି ହଉଛନ୍ତି, ତାକୁ କେମିତି ଅଲଗା କରିବା, କେମିତି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ହଟେଇକି ବ୍ରିଟିଶର ପାୱାରକୁ ଆଣିବା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓକୁ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଏ ନ୍ୟू इंडिया। नेक्स्ट हमर माने थीम होची हमर नेक्स्ट वीडियो रो ए न्यू इंडिया, गोटे नुआ इंडिया तैयारी करा जिवो, एवं से इंडिया हमर नेशनलिस्ट मूवमेंट पई लड़िबो, नेशनलिस्ट मूवमेंट पई लड़िबो। वर्तमान सुद्धा आपर नेशनलिस्ट मीनिंग फीलिंग आसी नहीं। सिपाही विद्रोह हो पछे आमे सिपाही विद्रोह ड्रॉबैक्स रे देखिथिले जे हिंदू मुस्लिम एकाठी हेकि लडुथिले, किंतु किछि प्लानिंग नथिला कोन करियर अछि। ब्रिटिशर्स माने कहते हां आमे जाउछु, कोन करियो तापर प्रधानमंत्री के हबो, मुख्यमंत्री के हबो, माने हमर को सिस्टम हबो, संविधान केमति हबो, किछि प्लानिंग तो नथिला ना। तो आमे समस्त इंडियन बोली एमती किसी फीलिंग भी नथिला, किए को से मद्रास लोक से बॉम्बे लोक एमती सब प्रॉब्लम थिला। तो केमिति ए जो नेशनलिस्ट फीलिंग टा डेवलप होला, आपण देखुछन आमे 1858 कथा कथा होचे, आपण आगुआ ऑलरेडी जानिथिबे समस्त टिके टिके जे 1900 मसिया परे ही सब बड़ बड़ जिंस हेछि, माने अशोक गांधी जी आसिले, सुभाष बोस हुंतु, सब 1900 मसिया परे सब जिंस उडा कहिछि। तो 1858 मसिया रु आपण कहि परिबे 1900 मसिया पर्यंत जो सेकंड हाफ टा रहिला, सेथरे हमर जातीयता भाव जागृत होला, धीरे धीरे हमर नेशनलिस्ट फीलिंग जागृत होला, आमे केमिति एकाठी हे परिबा। तो सेइटा ही हबा हमर नेक्स्ट टॉपिक, द न्यू इंडिया, जोटा कि नेशनलिज्म पाई लढिला, नेशनलिस्ट फीलिंग को बढ़िला, निज भितरे आनिला 1858 रु 1900 मसिया भितरे। एवं तापरे आमे धीरे धीरे स्वाधीनता आंदोलन को जिबा, एवं तापरे अगस्त 15 रे आमे स्वाधीन हेबा, सेटा आपण जानिछन्ती। तो आज वीडियो एतिकी थिला, एमसीक्यू डिस्कस करदबा। Which official act passed by the British Parliament directly ended the rule of the British East India Company? किए तो 73 नुहे, 53 नुहे, 58 नुहे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 मसिया सेही शेष करथिला संपूर्ण रूप रे। Following the 1857 revolt, सिपाही मेटेनी परे, the title of the Governor General of India was changed to what? Governor General of India को कर दिया गला, वाइसरॉय कर दिया गला। कोड रहिबे, इंडियन रहिबे। प्रथम वाइसरॉय किए थिले, प्रथम वाइसरॉय किए थिबे, ताकर ना आपण कमेंट सेक्शन में कहिबे। प्रथम वाइसरॉय किए आ प्रथम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किए, ए दि जनकर महान व्यक्तित्वଙ୍କ नाम आपण कमेंट रे कहिबे जदि मन रहिला। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया
ना वाइसरॉय और ये होचन कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ए दी जंग ना आपण कमेंट रे कहबे तो आंसर हेला वाइसरॉय नेक्स्ट who become the first viceroy of India question ही आसी गला आपण कोन कहबे so question अछि who become the first viceroy of India under the new crown administration की हेले लॉर्ड कैनिंग प्रथम viceroy हेले तापरे which new British cabinet position was created in the London to oversee the governance London नु इंडिया गवर्नेंस देखिया पे कोन करा गला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करा गला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नारा क्वेश्चन नहीं तो सेटा तो आपण कहबे कमेंट रे हाउ डिड द ब्रिटिश रिस्ट्रक्चर द इंडियन आर्मी कंपोजिशन रिगार्डिंग द यूरोपियन एंड इंडियन सोल्जर्स आफ्टर द रिवोल्ट परे दे कंप्लीटली डिसेबल द इंडियन रेजिमेंट इंडियन संपूर्ण छाड़ी देले तांकर काम केन चलियो लोक दरकार ना दे इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ द यूरोपियन सोल्जर हां एटा यूरोपियन मानक संख्या बढ़ी देतिले दे डिक्रीज द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर एटा त नो दे अलाउड द इंडियन सिपोज टू हैंडल ऑल हेवी आर्टिलरी ना एटा नो एटा गोटे थिला आपण पूरा टॉपिक देखि परिबे जे इंडियन मानक गोटे लिमिट रहि गला से फाइनली गोटे पर्टिकुलर सुबेदार लेवल पर्यंत सेतिक लेवल पर्यंत इंडियन माने जते परिश्रम करंदु बचे जते भलो काम करंदु बचे से सुबेदार लेवल पर्यंत ही रहि परिबे बेसी ऊपर लेवल पर्यंत आसी परिबे नै गोटे पर्टिकुलर लेवल पर्यंत से आर्मी रे रहि परिबे तो माने इंडियन मानक पूरा सब किछि हैंडल करिया तो दियाला एमति तो केबे हे परिबो नै ऑप्शन बी हे जोर आंसर नेक्स्ट What policy shift did Queen Victoria Proclamation of 1858 announce regarding the princely state? 1858 मसीह रे कोन हितला प्रथम annexation of all the remaining princely state सब नै जिवे सेंति तो हेलानी strict enforcement of the doctrine of lapse तो रहिला नै हो abandonment of the policy of annexation and the recognition of the adoption rights एटा ठीक अछि adoption of the policy of अडॉप्शन अबैंडनमेंट माने छाडी दिया गला अनेक्सेशन पॉलिसी को हटै दिया गला एवं जहां भी अडॉप्शन करिवार राइट अछि माने तुम जहां कोई प्रोसेस संतान करछ किछि प्रॉब्लम नै कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ द प्रिंसिपल स्टेट इनटू ब्रिटिश प्रोविंसेस एटा भी हेला नै एमदी किछि हेला नै तापरे which community groups did the British begin to heavily recruit into the army labeling them as the martial races मार्शियल को माने थिले मराठा मुगल तो हे परिबा नै ब्राह्मण एंड राजपूत ऑफ अवध नुहे कारण अवध मान तो हेल्प करथिले बेंगोलीज एंड बिहारीज भी नुहे सिख गुरखा और पठान जो माने कि ब्रिटिशर्स मान को सपोर्ट करथिले सिपाही विद्रोह समय रे तांकु ही माने मेन मार्शियल क्लासेस रे कर दिया गला व्हाट वाज द विजुअल सिंबल ऑफ द एंड ऑफ द मुगल एम्पायर आफ्टर 1857 म्यूटिनी 1857 म्यूटिन पर विजुअल सिंबल कोन थिला बहादुर शाह जाफर माने देखो 1857 मसिया रे युद्ध रे एम्पायर ऑफ इंडिया किए थिले सिपाही विद्रोह समय रे एम्पायर ऑफ इंडिया का घोषणा करा हेतिला बहादुर शाह जाफर को डिक्लेयर करा हेतिला तो तांको हटेबा ही माने सिंबलिटिकली से ना माने एबे हम कहि परिबा हमर सिंबलिटिकल हेड के राष्ट्रपति माने पूरा हमर हेड जी कंट्रोल करंतु कि न करंतु तो सही बढिया जो सिंबलिटिकल हेड थिले बहादुर शाह जाफर तांको ही कंट्रोल करियार अर्थ जे म्यूटिनी सरियोला माने पूरा एंड हला मुगल एम्पायर संपूर्ण रूप एंड हला आ म्यूटिनी शेष होला तो कोन हेतला बहादुर शाह जाफर को संगे कोन हेतला हमें बहुत वीडियो देखि सर चागवा तांको मारि दिया हेतला दिल्ली रे बा सेंटेंस एग्जीक्यूटेड ना मारि दिया नतला बहादुर शाह जाफर वाज एक्साइल्ड टू रंगून तो रंगून को पठै दिया जायतला रंगून को सेंड कर दिया जायतला The Mughal royal family migrated to Great Britain. The British accepted the next Mughal heir. नहीं तांकर जे माने आंकर जे पुत्र माने थिले बहादुर शाह जाफर को जे पुआ माने थिले तांकु सब हत्या कर दिया हेतला अब बहादुर शाह को रंगून रखा हेतला हाउस अरेस्ट करी रखा हेतला परवर्ती समय रे तांकर मृत्यु हेतला एति सहित आज संपूर्ण वीडियो हमर शेष हला नेक्स्ट वीडियो को हमें देखिबा द राइज ऑफ द नेशनलिस्ट फीलिंग मूवमेंट तापर आसीबो प्रथमे फीलिंग आसिया दरकार बर्तमान सुधा फीलिंग आसीनी तो नेक्स्ट वीडियो में देखिबा राइज ऑफ द नेशनलिस्ट फीलिंग एज ए वीडियो एतिक दिला धन्यवाद।